So hey my dear, this is Yusrad and you're watching Alchemist Academy. In the last video of class 10 of chemistry, हमने discuss किया था displacement reaction and double displacement. Now in this video we are going to discuss about the oxidation and reduction, and after that we will discuss the corrosion and rancidity, and this will be the end of the chapter. So हम लोग start कर रहे हैं oxidation and reduction. So first of all, what is oxidation? Let's see about the what is oxidation. Oxidation. अगर आपने पहले ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा तो एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है ऑक्सीडेशन की पढ़ी होगी, दैट इज हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट ऑक्सीडेशन इज अ रिएक्शन इन विच there is addition of O2 molecule or oxygen, we can say oxygen, or removal of hydrogen, and this is considered as oxidation reaction. इसी को हम क्या कहते हैं? Called oxidation reaction. यहाँ पे प्लस पॉइंट की बात हम लोग भी करेंगे. अभी फिलहाल हम लोग सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं, दैट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ओके, आई थिंक यू गेट इट द पॉइंट. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग. सो एग्जांपल में देखेंगे अगर हम लोग, सो यहाँ पे देखते हैं, सपोज द फर्स्ट कंडीशन इज द addition of oxygen. So like we have sodium and there is an addition of oxygen in the sodium, then there is a formation of N2O, we can say like this. So this can be considered as oxidation reaction because there is an addition of oxygen takes place and it forms sodium oxide, disodium oxide. Okay, तो यहाँ पे हम लोग इसको समझ सकते हैं. This is the first example. Now we have another example, like if we take Mg plus O2, then we can after the reaction they form MgO. ये क्या बनाएंगे बेटा? MgO बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना. So both these two reactions are addition of O2 molecule. ये दोनों ही रिएक्शन कैसी हैं? These are the addition of O2 molecule. Is that clear? Now let's say about the removal of hydrogen. Some reaction about the removal of hydrogen अगर हम लोग बात करें, so for removal of hydrogen के लिए first reaction देखते हैं, like if we have H2S and if we add oxygen in it, then there is a reaction between H2S and O2 molecule, and there is a formation of water molecule and there is a formation of 2 sulfur molecule. Okay, is that clear? 2 sulfur atom. Now this can be considered as the addition of removal of hydrogen. It means यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो H2S is the whole compound that having hydrogen. यहाँ पे हाइड्रोजन है, बट अगर यहाँ पे देखें इन केस ऑफ प्रोडक्ट तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया है. सो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, सो देयर इज अ ऑक्सीडेशन. यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन बाय H2 रिमूवल, बाय H2 रिमूवल. गेट इट? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एंड अदर एग्जांपल. HCl and MnO2, then they react to each other and they form MnCl2 plus H2O plus Cl2. So this will be the again an removal of hydrogen reaction. It means it is also an oxidation. I hope you get it the point. So let's again balance it. Here is the 2 and again we can say 4HCl, then it is the balance reaction. So these two reactions are hydrogen removal
है ना, ये कैसी है, हाइड्रोजन रिमूवल है, एंड दैट्स वाई इसे भी हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इज दैट क्लियर? सो दीज आर two different kind of example that represent the oxidation. Now we have another special case for the special case, या हम इसे कह सकते हैं सुपर पॉइंट, सुपर केस, सुपर केस है ना. आगे से जो भी एक्स्ट्रा एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वी विल कंसीडर इट एज अ सुपर केस. तो यहाँ पे सुपर केस यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा, दैट इज इफ there is a removal of not hydrogen, there is a removal of electron, then it is considered as oxidation. It will be oxidation, or there is a oxidation called oxygen. यानी removal of, if there is a removal of electron कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे. पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने समझने के लिए. फर्स्ट कंडीशन इज दिस. सो लेट्स सी, इफ वी हैव Na, रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन Na, so it will become Na plus, Na positive, like this. So there is a oxidation of Na. This is oxidation, है ना. इसको हम क्या बोलेंगे, it is an oxidation reaction. Like we have another example, like if we have Fe plus 2, Fe2 plus, and if there is a removal of one more electron from the Fe plus 2 or Fe2 plus, then it forms Fe3 plus, and there is a removal of one electron. Then this reaction also considered as oxidation reaction. इसको भी हम क्या बोलेंगे, it is also an oxidation reaction. Is that clear? Now we have another example, like if this is the third one. If we have like Mg, and if there is a removal of 2 electron in Mg from Mg, then it forms Mg2 plus, and there is a 2 electron. So these all cases represents the removal of electron, and that we can say by this super case that this reaction or these reactions are oxidation reaction, or there is a oxidation takes place. Is that clear? I hope you get it very well. Now let's revise very quickly. So the oxidation is the reaction in which there is a addition of oxygen and removal of hydrogen takes place. Like we have example Na plus O2, and it forms Na2O, or sodium disodium oxide. Is that clear? And the second example is the Mg plus O2, it forms MgO. And we have another example that represent the hydrogen removal, like H2S plus O2, it forms H2O and S, sulfur. Okay, and now we have another example regarding to the removal of H2. There is a HCl plus MnO2, and it forms MnCl2, it forms MnCl2 and 2H2O and Cl2. Now we can see here that there is also removal of, from here to here, from here to there, there is a removal of hydrogen. Then we can say there is a oxidation of chlorine takes place in this reaction. यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जाने की बात हम लोग करें इस वाले क्लोरीन की. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नाउ वी हैव अनदर सुपर केस. सुपर केस है हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट सुपर केस. Then by the super case we have learned that if there is a removal of electron, अगर यहाँ पे removal of electron हो रहा है, then it will be considered as oxidation reaction. Like we have example Na, arrow Na plus E, it means electron, and if we have iron plus 2, तो ये plus 3 के फॉर्म में होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, या फिर हम Mg की बात करें, Mg plus 2 और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा. So these all the reaction are the oxidation reaction because they are removing the electron from the अर्लियर एटम. जो हमारे पास अर्लियर एटम था वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज केमिकल स्पीसीज दैट गेन्स द इलेक्ट्रॉन. जैसे हम कह सकते हैं कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, या फिर उसने इलेक्ट्रॉन को रिमूवल करवाया. दैट मेक्स द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, है ना. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अकर करता है उसे हम कहते हैं एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इज दैट क्लियर?
सो नाउ हम लिख सकते हैं दैट ऑक्सीडेशन एजेंट is a chemical species that makes the oxidation occur called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जिस केमिकल स्पीसीज की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस कंपाउंड या किसी एलिमेंट की वजह से जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और एग्जांपल हम यहां पे लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोगों ने सुपर केस दिया अभी, अकॉर्डिंग टू दैट हम लिख सकते हैं द species or chemical species, okay, the chemical species that take up the electron or gains the electron can be said as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मतलब वो केमिकल स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है या इलेक्ट्रॉन को ले लेती है, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में आपको बताया। सो वी हैव एग्जांपल, हम लोग के पास एग्जांपल है, एग्जांपल की मदद से देखेंगे, ज्यादा दिमाग खर्च करने वाली बात नहीं है यहाँ पे। सो द एग्जांपल इज लाइक वी हैव CuO, हमारे पास CuO है और हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं। वी आर गोइंग टू रिएक्ट दिस CuO विद हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा दैट दिस ऑक्सीजन इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, H2O बनाएगी एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, सपोज हमने इसको 2 कर दिया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे Cu2 का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगा। तो अब जरा देखते हैं इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ कौन काम कर रहा है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, CuO, ठीक है, यहाँ पे क्या है, CuO है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे केवल CuO है। अगर हम यहाँ पे देखें इस CuO को और इस Cu को देखें तो यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो इसका क्या हुआ है, एक तरह से अगर हम देखें तो रिडक्शन हुआ है ना, यहाँ पे क्या हो रखा है बेटा, रिडक्शन हो रखा है। अब अगर हम इसको देखें हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, इट मीन्स ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहां पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी अगर हम कहें कि ऐसे सपोज करते हैं कि जैसे ये क्या है, यहां पे Cu, अगर इसके हम आयनिक बैलेंस निकालें तो Cu+2 निकलेगा, है ना, Cu- ऐसे निकलता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखें कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है और इसके पास अभी यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, मतलब यहाँ पे पूरे हो गए हैं चार्ज, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बराबर हैं इसके पास, ठीक है। एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन वाला, या दूसरा कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो रिडक्शन है, ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजन ऐड किस में हो रहा है, हाइड्रोजन में हो रहा है। इस CuO की वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है जाके, ठीक है, मतलब जो हाइड्रोजन दे रहा है वो कौन है, सॉरी, जो ऑक्सीजन दे रहा है हाइड्रोजन को वो कौन है, दैट इज CuO, है ना। तो इसी की वजह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो यहां पे CuO जो स्पीसीज है ये बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगी,
फिर से अभी इसको रिवाइज कर लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगी। और क्योंकि CuO का खुद का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, और वो किसकी वजह से निकल रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे CuO is considered as oxidizing agent because it is responsible for the to provide the oxygen to the hydrogen। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करा रहा है, ये करा रहा है। चार्जेस की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मतलब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे 0 हो गई है एक तरह से आके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और वही हमने देखा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, हम लोग एक एक करके उनको देखते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों कॉन्सेप्ट को लगा के हम लोग ऑक्सीडेशन जो होता है उसे कैसे निकालते हैं वो देख सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं उन्हें देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो सो दूसरा जो एग्जाम्पल है हम देख लेते हैं इसको, दैट इज वी हैव CuSO4 प्लस Zn एरो ZnSO4 प्लस Cu। ना इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे ये जो ऑक्सीडेशन है वो हो रहा है। सो अगर हम कंसीडर करें दैट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द CuSO4 ब्रेकडाउन कैसा हो सकता है, तो CuSO4 is going to break into Cu2 plus SO4 डबल माइनस लाइक दैट। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। नाउ इन केस ऑफ Zn, सेकेंड वन इज Zn की अगर हम लोग बात करें तो Zn इज गोइंग टू ब्रेक इनटू Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट रिमूव्स द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अभी सारे कॉन्सेप्ट इसमें हम लगाने वाले हैं। नाउ अब ये जो रिएक्शन होगी तो क्या होगी, अब देखते हैं Zn2 प्लस SO4 डबल माइनस एरो ZnSO4। ठीक है, एंड D की बात करें दैट इज देयर इज अ Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो CuO। ठीक है, तो फाइनल रिएक्शन जो हमारी होगी अगर हम लिखें तो यही वाली ऊपर वाली निकल के आने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, दोनों कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं यहाँ पे जो हमने लिख रखे हैं। ऑक्सीडेशन एजेंट इज अ केमिकल स्पीसीज दैट मेक्स द ऑक्सीडेशन अकर, ऑक्सीडेशन कराती है ना, कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। पहले वाले से एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस वाले से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, CuSO4 है। ठीक है, ये ब्रेक हो रहा है इस तरह से, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, -2 है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। Zn क्या कर रहा है, अपने आप को इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। ठीक है, Zn क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। तो इसका मतलब इसका क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, है ना। अब वो इलेक्ट्रॉन रिमूव क्यों कर रहा है उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे लास्ट वाला इस वाले पॉइंट को, दैट टेक अप द इलेक्ट्रॉन, इसको देखते हैं। क्या यहाँ पे ऐसा कोई स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है? यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu न्यूट्रल या 0 के फॉर्म में आ जा रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और कोई जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसे हम रिडक्शन एक तरह से कह सकते हैं, उसका रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है। ऊपर जाते हैं Zn के पास, तो इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब क्योंकि Cu+2 का जो Cu+2 है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से है, Zn से आया है। तो वो Zn को मतलब Zn से करवा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को निकाले, फिर वो इसको एक्सेप्ट करे, एक तरह से कह सकते हो। तो यहाँ पे सिचुएशन ये बता रही है कि ये Cu+2 की वजह से Zn इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना, और इन इलेक्ट्रॉन निकलने में Cu का हाथ है। इसका मतलब जो Cu है
ठीक है। Cu वाला जो पोर्शन है CuSO4, ये एक तरह से इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था हम लोगों ने, देखो बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे नजर आ रहा है बेटा, है ना। अब यहाँ पे एक सुपर केस निकल के आता है, उसकी बात अभी करते हैं। सो यहाँ पे देखो बेटा, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ, खुद का रिडक्शन हुआ है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। हम लोगों ने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा, ठीक है। तो दोनों ही एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गए होंगे। पहले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा, इन केस ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव डिस्कस अबाउट द देयर इज अ CuO दैट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दैट ऑक्सीडाइज द H2, है ना। ये H2 को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ H2O, इस तरह से। एंड बट H2 itself act as a reducing agent and it reduces the CO, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम इन दोनों को इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव सम सुपर केसेस। सुपर केस नंबर फर्स्ट, सुपर केस फर्स्ट क्या कहता है, दैट, देखिए फर्स्ट केस क्या कहता है, दैट केमिकल स्पीसीज दैट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, द केमिकल स्पीसीज that accepts the electron reduces itself, अपने आप में क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सो दैट इज द फर्स्ट सुपर केस। नाउ सुपर केस नंबर सेकेंड इज, second is, okay, so second case is that if there is reduction and oxidation, both occurs in a same reaction, it is called as, इसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन देखा, कुछ सुपर केसेस देखे यहाँ पे। सो ये जो पोर्शन है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगर एक दो पॉइंट होता है तो हम आगे डिस्कस करते हैं इसको इरेज करने के बाद। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि एक दो एग्जांपल और बताने की जरूरत है, ठीक है बेटा। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, इट मींस की रिडक्शन के बारे में, एंड देन वी विल डिस्कस द रिड्यूसिंग एजेंट। सो स्टे ट्यून्ड, हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। टॉक अबाउट रिडक्शन। रिडक्शन की बात करते हैं हम लोगों ने। अभी हम लोगों ने जस्ट ऑक्सीडेशन देखा है, रिडक्शन ना फर्स्ट हम लोग देखते हैं रिडक्शन होता क्या है। सो रिडक्शन इज अ रिएक्शन, in which or a reaction which involves the addition of hydrogen and removal of oxygen. A reaction in which there is a removal of oxygen and addition of hydrogen is called reduction reaction. उसे हम क्या कहेंगे, that can be said as reduction reaction. Okay. Now for example, अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल इसके बारे में देखें। So एग्जाम्पल की बात करें, like we have H2 plus S, then H2S, it forms H2S, then there is a addition of hydrogen, so it is considered as a reduction reaction.
Now if we have H2S plus Cl2, then it forms HCl plus sulfur. So these both reactions are considered as reduction reaction, and there is a हाइड्रोजन एडिशन टेक्स प्लेस। यहां पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है, ये हम देख के समझ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन। हम लोग ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं क्या होता है। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या होता है? अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि मतलब ये थोड़ी सी हैबिट में आ गई है, या पता नहीं जल्दी जल्दी में, या दिमाग बहुत तेज काम करता है इसलिए, आई मीन बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बट ये बताना था कि जैसे हम कभी कभी लिखते रहते हैं, मैं लिखता रहता हूँ और मेरे दिमाग में चल कुछ और चीज़ें रही होती हैं और मैंने बोला कुछ और लिखा कुछ और, ऐसा कुछ होता है। मतलब जैसे मैंने लिखा सपोज कि H2S, तो इसकी जगह मैंने HCl लिख दिया, है ना। वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ओवर फास्ट, या आगे वाली चीज़ें लिख देते हैं, या एक दो स्किप हो जाता है। तो अगर कभी ऐसा हो तो मैं बाद में उसको सुधार कर देता हूँ। फिलहाल आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पर गलती हो गई। ये कभी कभी होता है, रेयर केसेस में। सो मैंने सोचा आपको बता दूं। चलिए, सो हम लोग ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में एग्जांपल की बात कर रहे थे। लाइक वी हैव CuO H2, so it forms H2O and Cu. Now we can see that there is a removal of oxygen from CuO. यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है फ्रॉम CO, तो हम इसे भी कह सकते हैं दैट इट कैन बी सेड एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, आगे लाइक वी हैव ZNO। अगर हमारे पास ZNO हो और सपोज हम लोग रॉ कार्बन से करा रहे हैं इसका जो रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो यहाँ पे इन बोथ रिएक्शन देयर इज अ रिमूवल ऑफ O2। यहाँ पे रिमूवल हो रहा है, O2 का रिमूवल हो रहा है, तो इट ऑल्सो कैन बी सेड एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसे भी हम क्या कह सकते हैं? रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। नाउ हियर इट कम्स दैट इज और सुपर केस। यहाँ पे हमारा सुपर केस आता है, आपको एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। सुपर केस, इस केस में फर्स्ट आता है, मतलब रिडक्शन में फर्स्ट केस आता है दैट if there is addition of electron or gain of electron, ठीक है, then it is also considered as रिडक्शन रिएक्शन। अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जैसे हम लोगों ने लास्ट अभी ऑक्सीडेशन में देखा था, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वहां पे हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो एन रिडक्शन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल लाइक वी हैव Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, सो Cl नेगेटिव। ठीक है, वी हैव फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे क्या है? F माइनस। यहाँ पे भी आपका रिडक्शन हो जाएगा, लाइक वी हैव Fe प्लस 2 एंड देयर इज अ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट इज Fe प्लस 1, तो यहाँ पे भी रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे Mg प्लस 2 है एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, देन इट इज Mg प्लस 1। So these all the reactions, these all the concept represents the reduction by addition of electron. Is that clear? I hope these points are very clear to you. ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। सो हम लोगों ने यहाँ पे रिडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो लिखा दैट इफ देयर इज अ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, so that we can say it is a reduction reaction. ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा दैट देयर इज H2S, अगर हम H2 प्लस सल्फर को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे H2S बनता है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। फिर हम लोगों ने दूसरी रिएक्शन देखी H2S प्लस क्लोरीन की, ठीक है, यहाँ पे HCl फॉर्म हो रहा था और सल्फर फॉर्म हो रही थी, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा था विद क्लोरीन, क्लोरीन का हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन से एडिशन। देखिए ये क्लोरीन किससे ऐड कर रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे HCl बना रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ ऐड हो रहा है, क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है एक तरह से। तो यहाँ से बेसिकली हम समझ सकते हैं। फिर हम लोगों ने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट देखा, CuO प्लस H2 के साथ देखा, तो H2O बन रहा था वहाँ पे, ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने ZnO प्लस कार्बन के साथ रिएक्ट कराया, तो इस तरह से हम लोगों ने ये भी रिएक्शन रिडक्शन के फॉर्म में देखी। हमने आपको एक स्पेशल केस बताया, दैट इज इफ देयर इज अ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। लाइक हम लोगों ने एग्जांपल देखे, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये भी एक तरह से रिडक्शन हो जाएगा इसका, अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा इसका, अगर Fe+2 और इलेक्ट्रॉन एक गेन कर रहा है तो Fe+1 में आ जाएगा एंड इट इज ऑल्सो एन रिडक्शन रिएक्शन, एंड अगर Mg+2 जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो Mg+1 में आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। सो दीज ऑल रिएक्शन रिप्रेजेंट रिडक्शन रिएक्शन। ओके, आई होप यू गेट इट वेरी वेल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करते हैं और इसको इरेज करके फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं हम लोग, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज अ केमिकल स्पीसीज that makes reduction occur called as reducing agent। इसे हम क्या कह सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। मतलब ऐसी कोई केमिकल स्पीसीज जो रिडक्शन करवाए, है ना, करने को एक तरह से इंड्यूस करे, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। और वी हैव अदर एग्जांपल, और भी डेफिनेशंस है हमारे पास, लाइक केमिकल स्पीसीज दैट प्रोवाइड्स हाइड्रोजन और removes oxygen and causes reduction of other species called as reducing agent, मतलब ऐसी कोई स्पीसीज जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करे, ठीक है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करने के साथ साथ क्या करे, हाइड्रोजन प्रोवाइड करे और उसके साथ साथ ऑक्सीजन को रिमूव करे या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करे, और वो दूसरी जो स्पीसीज है उसको क्या करे, रिड्यूस कर दे, तो उसे ही हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और वी हैव अदर एग्जांपल, एक और है हमारे पास डेफिनेशन, दैट द स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज दैट removes electron or loses electron called reducing agent, उसे हम क्या कहेंगे, reducing agent कहेंगे, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशन हो सकती हैं। द फर्स्ट डेफिनेशन इज द रिड्यूसिंग एजेंट इज a chemical species that makes reduction occur, एक केमिकल स्पीसीज जो रिडक्शन को करने देती है, करवाती है, उसे हम कह रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ केमिकल स्पीसीज दैट प्रोवाइड हाइड्रोजन एंड रिमूव्स ऑक्सीजन एंड makes the reduction of other compound or other substance is known as reducing agent. The third one is the species that provides electron or removes electron or loses electron is known as reducing agent. So these are some concept about the reducing agent. Now let's see the some example की अगर हम लोग बात करते हैं, example, ठीक है, like we have Cu plus I2 and they form CuI2,
तो जैसे हम लोगों ने लास्ट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन में देखा था, हम लोगों ने ब्रेक करके सबको देखा था, तो चलिए ब्रेक करके देख लेते हैं। I2 की बात करते हैं सबसे पहले। तो I2 2I के फॉर्म में होगा, है ना, इस तरह से। ये क्या करेगा, नो, Cu की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। Cu ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2+ में, ठीक है। मेटल है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है कि इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Cu क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे। एंड फिर क्या होता है कि जो I2 होता है ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को की तरफ अट्रैक्ट होता है और ये बन जाता है 2I-। क्लियर? एट लास्ट ये 2I-, इट मीन्स कि Cu2+ एंड Cu2+ एंड I2 या 2I सिंगल माइनस ये आपस में रिएक्ट करके Cu I2 बना लेते हैं। मतलब वो फाइनल रिएक्शन जो ऊपर वाली है वो आ जाती है इस तरह से, ठीक है। नीचे वाली जो रिएक्शन ये फाइनल है, ये दोनों सेम रिएक्शंस हैं, ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम लोग इसको मैच कराते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। कह रहे हैं डेफिनेशन लास्ट वाली जैसे बात करें तो द स्पीसीज दैट रिमूव्स इलेक्ट्रॉन, एक ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है। कौन सी स्पीसीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रही है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो Cu है, कॉपर है, वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है और +2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई। फिर और मैच कराते हैं कि विच प्रोवाइड्स हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो इसमें है नहीं, या फिर विच मेक्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है नहीं। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम यहाँ पे इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये खुद क्या हो रहा है, अगर हम इसको देखें तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। प्लस पॉइंट अभी हमने बताया था वहां पे आपको कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, या फिर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद रिड्यूस होगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट, वहां पे मैंने प्लस पॉइंट या सुपर पॉइंट पे लिखवाया था आपको, ठीक है, सुपर केस में। तो यहाँ पे बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये, इसको हम क्या बोलेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट Ra की तरह हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पे I2 जो है वो एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि Cu क्या हो रहा है, खुद में ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए I2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये भी रेडॉक्स रिएक्शन की तरह कंसीडर की जाएगी जैसे हम लोगों ने अभी देखा था। एंड जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करा रहा है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कहीं पे अगर आपको हाइड्रोजन का एडिशन दिख जाता है तो वो रिएक्शन भी कैसी हो जाएगी आपकी, अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखे ही हैं कि आपकी जो रिएक्शन हो जाएगी, या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए तो वो भी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं जिसमें हम देखेंगे कि अगर ऐसा कोई स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है या रिलीज कर रहा है, एक तरह से कह सकते हो, या फिर हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। लाइक अगर एक एग्जांपल और हम लोग देखें तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा और समझने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा एंड इस एग्जांपल से भी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल और, एंड इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स की पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा जो एग्जांपल है वो है Na+Cl2, 2Na यहाँ पे हो रहा है, फॉर्म हो रहा है NaCl, ठीक है। ये कुछ इस तरह से रिएक्शन हो रही है कंप्लीट। अगर हम लोग देखें फर्स्ट तो Na की बात करते हैं, 2Na है, ये फॉर्म हो रहा है, 2Na+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। यहाँ पे Cl2 है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को वापस से गेन करेगा और गेन करके 2Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। एक स्पीसीज इसकी आयनिक स्पीसीज में, है ना। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, पता है कि रिडक्शन होगा, ओके। और यहाँ पे हमें पता है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अभी हमने जस्ट आपको बताया था कि जो स्पीसीज खुद ऑक्सीडाइज हो रही है, इट मींस जैसे Na क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है Na+ में, है ना।
तो ये क्या हो जाएगी आपकी रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगी, ठीक है। और जो Cl है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। इतने सारे एग्जाम्पल हो गए हैं, आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि Cl जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है स्पीसीज वो क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, या उसका रिडक्शन होता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसी स्पीसीज दैट लूजेस द इलेक्ट्रॉन, दैट रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन, कंसीडर्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे भी वो क्लियर हो रहा है। सो कुछ इस तरह से हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम प्रॉपर्टीज ऑफ reduction and oxidation, and then we will finish the topic. Okay, so let's discuss about the some effect of reduction and oxidation in our daily life, कि कैसे कुछ इफेक्ट जो है हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के। सो द वेरी फर्स्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन आवर डेली लाइफ इज द corrosion. Corrosion is the one of the most common टाइप ऑफ फिनोमेना दैट वी कैन सी इन आवर डेली लाइफ। लाइक इसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं, फिर आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। दैट इन दिस सिचुएशन दैट व्हेन अ मेटल surface is exposed to atmosphere, is exposed to atmosphere, atmosphere में normally expose होती है, then the moisture present in air, the moisture present in air is reacts with metal surface, and forms undesirable substances or compound So this phenomena is called, this phenomenon is called corrosion, ठीक है। इस तरह के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बेटा, कोरोजन कहते हैं। इट मीन्स कि जब भी हम क्या करते हैं, जैसे मेटल को, जैसे हम लोगों ने लोहे की कोई रॉड बाहर रख दी, या पीतल का कोई बर्तन, स्टील का कोई बर्तन रख दिया है ना, कॉपर का कोई बर्तन रख दिया, पॉट रख दिया बाहर, तो क्या होता है जब वो लंबे समय तक वहीं पड़ी रहती है तो उसमें एक हल्की सी फ्लेक लेयर, जो मतलब एक हल्की सी लेयर आ जाती है ना, ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की या ग्रीनिश कलर की लेयर होती है। तो उस तरह से उस फिनोमेना को हम कहते हैं कोरोजन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल को देखें, सो वी हैव the very known example is rusting in iron। रस्टिंग इन आयरन की हम लोग बात करें, when we expose the iron into the atmosphere, अगर एटमॉस्फेयर में हम एक्सपोज करके रखते हैं तो उस पर एक ब्राउन कलर की फ्लेक लेयर आ जाती है। तो ये भी एक एग्जांपल है कोरोजन का, इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। दूसरा, when we expose कॉपर पॉट्स, अगर हम कॉपर पॉट को एक्सपोज करते हैं तो अच्छा, इसके केस में ये ब्राउन कलर का हो जाता है, लिख लेते हैं वरना आपको आप भूल भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्राउन कलर का हो जाता है, कलर कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो जाता है। इसके केस में बेटा ग्रीनिश या ग्रीन कलर का कंपाउंड जो है फॉर्म हो जाता है, ठीक है। कॉपर के केस में यहाँ पे ग्रीन कलर का जो कंपाउंड है वो फॉर्म हो जाता है। एक और एग्जांपल अगर हम लोग देख सकते हैं, दैट इज अगर हम सिल्वर को देखते हैं, सिल्वर तो यहाँ पे प्लस अगर मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाता है, तो यहाँ पे ये जो सिल्वर है वो ब्लैकिश हो जाता है, ब्लैकिश या ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। उसकी जो सरफेस है उस पर ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, जिसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके कोरोजन में देखे जा सकते हैं, ठीक है।
नाउ द लास्ट पॉइंट इज द रेंसिडिटी। इसमें एक और एग्जांपल है, मतलब एक जो और इफेक्ट है हमारे डेली लाइफ में, दैट इज रेंसिडिटी। ठीक है बेटा, रेंसिडिटी क्या है इसके डेफिनेशन की पहले बात करते हैं। व्हेन ऑयल और फैट containing food exposed to atmosphere the oil or fat get oxidized and forms some unpleasant odor. The food is spoiled. जो फूड है वो पूरा पूरा खराब हो जाता है ना। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, दिस phenomenon is called rancidity। ठीक है बेटा, इट मीन्स कि जब भी हमारा जो खाना होता है फैट कंटेनिंग या ऑयल कंटेनिंग खाना हम ऐसे एक्सपोज करके रख देते हैं तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन या वाटर वगैरह से वो रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने की वजह से, मॉइस्चर रिएक्ट करने की वजह से क्या होता है, जो हमारा फूड है वो एक अनप्लीजेंट ऑर्डर को निकालने लगता है ना, महक आने लगती है, स्मेल आने लगती है, और जो हमारा खाना है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ देयर आर सम मेथड दैट बाय यूजिंग दैट वी कैन प्रिवेंट द रेंसिडिटी। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी? हम फूड में अपने एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं बाय एडिंग, यहाँ पे लिख दें हम, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, हम अगर अपने फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं केमिकल्स का, जैसे जो हमारे पैक्ड फूड वगैरह आते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स यूज होते हैं जिससे जो फूड है वो जल्दी स्पॉइल्ड ना हो। ठीक है, फिर हम लोग यूज क्या कर सकते हैं, हम अपने फूड को लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं, लो टेम्परेचर पे कहीं पे स्टोर करके रख सकते हैं, तो वहां पे भी हमारा जो फूड है वो स्पॉइल नहीं। नाउ थर्ड अगर हम लोग देखें, सो वी कैन यूज एयर टाइट कंटेनर। हम लोग ऐसे कंटेनर का यूज कर सकते हैं जो एयर टाइट हो, जिसमें हम अपना फूड रखें तो वो आसानी से खराब नहीं होंगे, मतलब जल्दी खराब नहीं होंगे, क्योंकि एयर उसमें जाएगी नहीं, मॉइस्चर नहीं जाएंगे, बैक्टीरिया वायरसेस नहीं जाएंगे, तो वो फूड हमारा जो खराब होगा नहीं। फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, हम इसको कहाँ रख सकते हैं, हम लाइट से थोड़ा सा हटके रख सकते हैं। वी कैन स्टोर फूड अवे फ्रॉम लाइट से दूर रखेंगे तो कहीं ना कहीं लाइट का भी रोल होता है, जो हमारा जो फैट वगैरह होता है उसको ऑक्सीडाइज करने में, तो कहीं ना कहीं वहां से भी उसे हम बचा सकते हैं, क्योंकि लाइट के ना होने की वजह से जो ये रेंसिडिटी का प्रोसेस है ये काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम रेंसिडिटी को धीरे धीरे कम कर सकते हैं, जिससे हमारा फूड है वो जल्दी खराब नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। बाय एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, लो टेम्परेचर पे यानी रेफ्रिजरेटर वगैरह में स्टोर कर सकते हैं, हम अपने फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, हम अपने फूड को इवन हम स्टोर कर सकते हैं लाइट से थोड़ा सा अलग, है ना, जहाँ पे लाइट की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी ना हो, जिससे जो रेंसिडिटी है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। तो ये कुछ बेसिक से मेथड हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ना एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। तो हम लोगों ने कोरोजन देखा। कोरोजन इज अ फिनोमेना दैट इज इन विच व्हेन अ मेटल एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट में कोई मेटल एक्सपोज की जाती है, देन इट रिएक्ट टू द मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट, है ना, ये मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाती है, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर। ठीक है, वहाँ पे एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है एट द सर्फेस ऑफ द मेटल,
जो अनडिजायरेबल लेयर होती है, जिसकी ज़रूरत तो नहीं होती लेकिन फिर भी वो फॉर्म हो जाता है और वो फिर मेटल को खराब कर देता है धीरे धीरे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने फेमस एग्जांपल रस्टिंग के बारे में देखा कि रस्टिंग जैसे मेटल आयरन में लग जाती है, कॉपर में देखा जैसे ग्रीनिश लेयर आ जाती है, सिल्वर में देखा कि जैसे कि ब्लैकिश लेयर आ जाती है। ठीक है, वहीं पे दूसरा ही पॉइंट है ऑक्सीडेशन के इफेक्ट का, दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, इसमें हमारा फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है धीरे धीरे एयर के कांटेक्ट में आते ही, है ना, और फिर कुछ टाइम बाद, एक थोड़े से समय बाद क्या होता है, उस फूड से स्मेल आने लगती है, अजीब सी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारा फूड जो है वो एक्सपायर हो चुका है। इसे बचते कैसे हैं? बचने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर सकते हैं, हम लो टेम्परेचर पे फूड को स्टोर कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर को, एंड वी ऑल्सो स्टोर द फूड अवे फ्रॉम द लाइट। हम इन बेसिक से मेथड्स का यूज करके अपने फूड को स्टोर कर सकते हैं। सो या गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, इसमें अभी कोई भी पॉइंट मेरे हिसाब से नहीं बचा है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो या दिस इज इट अबाउट द वीडियो। इफ यू आर न्यू एट आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन कर दें ताकि हम जितने भी वीडियोस अपलोड करें आपको आसानी से मिलते रहें। अब लाइन बाय लाइन बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, ये सारे चैप्टर वाइज चैप्टर, मतलब एक चैप्टर में 2 या 3 वीडियो में ही कवर कर दूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, मतलब 40-50 मिनट का एक वीडियो होगा जिससे आसानी से पूरा चैप्टर कवर हो जाए जल्दी से जल्दी। सो या दिस इज इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।